اگر انسان کے پاس ایجوکیشن مضبوط ہے، تعلیم کے میدان میں اگر اس نے کیا ہے ترقی کی ہے، تو معاشرہ خود بخود ترقی کر جائے گا۔ شراب نوشی خود بخود ختم ہو جائے گی جب بچہ پڑھ لکھ جائے گا۔ زنا کاری خود بخود ختم ہو جائے گی جب اس کے پاس علم آ جائے گا۔ چوری کیوں کرے گا وہ؟ جب اس کے پاس علم ہوگا، اچھی جاب ہوگی، نوکری ہوگی۔ غرض یہ کہ معاشرے کی ترقی علم پر ہے اور سماج کی ترقی ایجوکیشن پر ہے۔ تو جو معاشرہ علمی میدان میں جتنی آگے ہوگا، اتنا ہی وہ معاشرہ ترقی کرے گا۔ جو قوم جتنا پڑھے گی وہ قوم اتنا ہی ترقی کرے گی۔ آج یورپ والے سب سے زیادہ ترقی کر رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے، یورپین سب سے زیادہ ترقی کر رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ رپورٹ پڑھیں کلچر ڈیولپمنٹ کی، یہ ایک ایجنسی ہے، اس کی یہ رپورٹ ہے کہ یورپ کا رہنے والا ایک بندہ سال میں 200 گھنٹے پڑھتا، اور ان کی ریسرچ رہتی ہے باقاعدہ۔ یورپ کا رہنے والا سال میں 200 گھنٹے پڑھتا، اور مسلمان قوم اس کا ایک فرد پورے سال میں 6 منٹ پڑھتا۔ تو اب آپ بتائیں، جو قوم سال میں 200 گھنٹے پڑھے گی وہ ترقی کرے گی، یا جو قوم سال میں صرف 6 منٹ پڑھے گی وہ ترقی کرے گی؟ ایجادات تو وہی کریں گے، نئی نئی چیزیں وہی دنیا میں وجود میں لائیں گے جو قوم 200 گھنٹے پڑھتی ہے۔ لیکن جو قوم صرف سال میں 6 منٹ پڑھ رہی ہے، تو وہ قوم کہاں ترقی کرے گی؟ وہ تو مزدور بن جائے گی۔ آپ یورپ جائیں گے تو مزدوری کرنے کے لیے، آپ سعودی عرب جائیں گے تو مزدوری کرنے کے لیے، تو یہ قوم تو پھر مزدور بن کر رہ جائے گی۔ اس کے اور آگے دیکھیں آپ، یونیسکو کی رپورٹ دیکھیں، یہ بھی ایجوکیشنل ریسرچ کمپنی ہے، ایجنسی ہے یونیسکو۔ وہ اس کی رپورٹ یہ ہے کہ مسلمان پورے سال میں صرف ایک کتاب بھی مکمل نہیں پڑھ پاتا، اس کے مقابلے میں ایک یہودی 40 کتابیں سال میں پڑھتا ہے۔ تو مسلمان، یہ یونیسکو جو ایجوکیشنل ریسرچر ایجنسی ہے، اس کا یہ دعویٰ ہے کہ مسلمان سال میں ایک کتاب بھی کمپلیٹ نہیں کرتا، اور یہودی سال میں 40 کتابیں پڑھتا ہے۔ تو آپ بتاؤ دنیا میں ترقی کون سی قوم کرے گی؟ آپ ہی بیٹھیں، آپ خود اپنا اندازہ لگائیں کہ میں نے سال بھر میں کتنی کتاب پڑھ لی، کیا میں نے سال میں کوئی کتاب پڑھی ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے آپ کو جواب مل جائے گا۔ تو جو قوم پڑھے گی وہی ترقی کرے گی۔ حالانکہ اقرا کا حکم سب سے پہلا ہمارے لیے ہے کہ تم پڑھو، تو مسلمانوں کو ڈائریکٹ یہ حکم ہے پڑھو ترقی کرو گے۔ لیکن جس قوم کے لیے اقرا کا لفظ آیا ہے وہی قوم دکانوں پر مزدوری کر رہی ہے، اور جو قوم سال میں 40 کتابیں پڑھ رہی ہے یا سال میں 200 گھنٹے پڑھ رہی ہے، تو پھر وہی کیا دنیا میں کیا ہے نئی نئی چیزیں وجود میں لا رہی ہے۔ کورونا کے ٹائم میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ 57 جو اسلامی ملک ہیں، 57 اسلامی ملک، اسلامی کنٹریز، سارے کے سارے انتظار میں تھے کہ دوائی کب بنے گی، کب ملے گی۔ بتاؤ 57 ممالک میں سے کس ملک نے اپنی دوائی ایجاد کی ہے کورونا کے ٹائم میں؟ سارے دوسروں کے، انگریزوں کے کیا ہے، انگریزوں کے اوپر ڈیپینڈ کر رہے تھے کہ کب کیا ہے ریسرچ پوری ہوگی، کب دوائی بنے گی، کب ہمیں ملے گی۔ 57 اسلامی ملک، تو ان کے پاس کوئی ایسا فارمولہ بھی نہیں تھا کہ وہ دنیا کو کورونا کے ٹائم دوائی بھی دے دیتے۔ گنے چنے چند ایسے ممالک ہیں جنہوں نے کورونا کے ٹائم میں دوائی کیا ہے ایجاد کی ہے، لیکن 57 اسلامی ممالک کا حال دیکھو۔ جاپان تنے تنہا، یہ ریسرچ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، جاپان ایک چھوٹا سا ملک ہے، اس ملک کے اندر اتنے پی ایچ ڈی ہولڈرز اور ڈگری لینے والے کیا ہے ایجوکیشن میں اتنے آگے ہیں کہ 57 اسلامی ممالک میں اتنے پی ایچ ڈی ہولڈر نہیں ہیں۔ 57 اسلامی ممالک میں اتنے پی ایچ ڈی ہولڈرز نہیں ہیں جتنے صرف ایک چھوٹے سے ملک جاپان کے اندر ہیں۔ جاپان میں جتنی یونیورسٹیاں ہیں، یونیورسٹیز جاپان میں تنہا پورے 57 اسلامی ممالک میں اتنی یونیورسٹیز نہیں ہیں۔ آپ اندازہ تو لگائیں کہاں مسلمان قوم کھڑی ہے۔ چھوٹا سا ملک جاپان، تو اس میں اتنی یونیورسٹیز ہیں کہ پورے 57 اسلامی ممالک میں اس کے برابر یونیورسٹیز نہیں ہیں، اور جتنے پی ایچ ڈی ہولڈرز جاپان میں ہیں پورے 57 اسلامی ممالک میں اتنے پی ایچ ڈی ہولڈرز نہیں۔ حالانکہ اگر آپ نے پڑھا ہو، اگر آپ کو یاد ہو، 80 سال پہلے اگر آپ جائیں، تقریباً 80 سال پہلے، تو جاپان کے بارے میں یہ رپورٹیں تھیں اخباروں میں کہ جاپان دنیا کے نقشے سے مٹ جائے گا دوسری ورلڈ وار میں۔
जो दूसरी जंग अजीम हुई है उसमें जापान पर जो अमेरिका ने क्या है एटम बम गिराए हैं, हिरोशिमा नागासाकी, तो हिरोशिमा के अंदर ही अमेरिका ने जब हमला किया 1,60,000 जापान के लोग मारे गए, और 3 दिन के बाद नागासाकी पर हमला किया तो वहां मारे गए। बीबीसी की रिपोर्ट यह है कि उसने यह खबर छापी थी उस वक्त कि जापान दुनिया के नक्शे से मिट जाएगा। 80 साल पहले जब हालात इतने गंभीर हुए जापान के सामने, तो जापान के सारे लोगों ने मिलकर ये मीटिंग बुलाई कि जितने भी जापान में पढ़े लिखे लोग हैं सबको इनवाइट किया, जितने भी टीचर्स थे सबको हायर किया और कहा कि तुम्हारे पास 20 साल का फार्मूला है। क्या फार्मूला है? कि जितने भी टीचर्स थे सबको यह कहा गया कि तुम्हें एक मिनिस्टर के बराबर हम सैलरी देंगे, जो एक कंट्री में एक मिनिस्टर को फैसिलिटीज होती हैं वो हम तुम्हें देंगे। मुल्क हमारा तबाह हो बर्बाद हो गया, एटम बम इस पे गिराए गए हैं, तो तरक्की कैसे होगी? टीचरों को कहा गया 20 साल का टारगेट है, आप हमारे बच्चों को एजुकेशन दें और खुलूस के साथ 20 साल तक पढ़ाएं। तो रिपोर्ट ये कहती है कि उन टीचरों ने जिन्हें मिनिस्टर के बराबर सैलरी देकर हायर किया गया, जब उन्होंने 20 साल जापान के नौजवानों पर जब मेहनत की है 20 साल के अंदर, फिर जापान दुनिया के नक्शे पर उभर कर आया। और इतना उभर कर आया कि अगर किसी चीज पर लिखा हुआ हो मेड इन जापान तो आंखें बंद करके खरीद लेता, ये तो है ही असली, ये तो है ही ओरिजिनल, मेड इन जापान। तो आप अंदाजा लगा एक मुल्क कि जिसके बारे में यह कहा जाता हो कि ये दुनिया के नक्शे से मिट जाएगा, लेकिन फिर वो दुनिया के अजीम तरीन मार्केट में क्या ऐसा उभर कर आता कि अब मेड इन जापान, मेड इन जापान। ये कहां से हुआ? वहां के टीचरों ने अपने लड़कों को पढ़ाया, एजुकेशन दी उन्हें। जब एजुकेशन दी तो दुनिया उनके सामने झुक गई है। इसको मैं कुरान से भी साबित करूं कि एजुकेशन के सामने दुनिया कैसे झुकती है। आप कुरान पढ़ें, कुरान कहता इन्नी जाइलुन फिल अर्दी खलीफा, अल्लाह ने फरमाया कि मैं रुए जमीन में अपना खलीफा बनाने वाला हूं, हजरत आदम को अपना नाइब बनाने वाला हूं दुनिया में। तो कुरान कहता आगे फरिश्तों ने क्या कहा? कालू तजालु फीहा मन युफ्सिदु फीहा व यस्फिकु दिमा, क्या तू दुनिया में ऐसे को खलीफा बनाएगा, नाइब बनाएगा जो दुनिया में फसाद फैलाएगा और खून खराबा करेगा? नहनु नुक़द्दिसु लक, हम इसके ज्यादा हकदार हैं, हम तेरी पाकी बयान करते हैं। फिर कुरान आगे क्या बयान करता? जब खलीफा बनाने की बात आई तो फरिश्तों ने कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क लगा दिया कि तू ऐसे को खलीफा बनाएगा जमीन में जो फसाद फैलाएगा और जो खून खराबा करेगा? तो कुरान आगे कहता है वअल्लम आदम अल अस्मा कुल्लहा सुम्मा अरदहुम अलल मलाइकति फक़ाल अंबिऊनी बिअस्माई हाउलाई इन कुंतुम सादिकीन, कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दुनिया में नाइब बनाने पर फरिश्तों ने क्वेश्चन मार्क लगा दिया कि जो खून खराबा करेगा, फसाद फैलाएगा, तू ऐसे को खलीफा बनाएगा? तो अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को इल्म सिखा दिया, वअल्लम आदम अल अस्मा, और सारी चीजों का इल्म हजरत आदम को अल्लाह ने दिया। और फिर कहा कि हजरत आदम को जो इल्म दिया तमाम चीजों का, वही इल्म फरिश्तों के सामने पेश किया। तो कहा फक़ाल अंबिऊनी बिअस्माई हाउलाई इन कुंतुम सादिकीन, जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जिन चीजों का इल्म है, ऐ फरिश्तों तुम भी मुझे बताओ क्या तुम्हें इन चीजों का इल्म है? तो फिर फरिश्ते क्या जवाब देते हैं? कालू, फरिश्ते आगे जवाब देते हैं कि कालू ला इल्म लना, कालू सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाह हम तेरी पाकी बयान करते हैं, हम इतना ही जानते हैं जितना तूने हमें सिखाया है। इन्नका अंतल अलीमुल हकीम, तू आदम को खलीफा बना रहा है रुए जमीन पर, तो तू इल्म वाला है, तू हिकमत वाला है। हिकमत वाला कहा फरिश्तों ने अल्लाह को, क्या कि तू जो आदम को नाइब बनाकर भेज रहा है, तू हकीम है, तू अपनी हिकमत के मुताबिक जो चाहे करे। तो गर्ज ये कि फिर क्या हुआ? जब हजरत आदम को बाकायदा सारी चीजों का इल्म दे दिया गया और फरिश्तों ने कहीं क्वेश्चन मार्क लगाया था कि तू ऐसों को जमीन पर भेजेगा जो फसाद करेगा, खून खराबा करेगा। जब हजरत आदम को इल्म दे दिया अल्लाह ने सारी चीजों का, तो फिर नतीजा यह निकला कि सारे फरिश्ते जो पहले एतराज कर रहे थे हजरत आदम के वजूद पर, इल्म जब हजरत आदम को मिल गया सारी अशिया का, सारे के सारे फरिश्ते हजरत आदम के सामने सजदा रेज हो गए। पता चला इल्म के सामने फरिश्तों ने क्या है अपने गर्दनों को झुका दिया। कुरान ये क्या है मैसेज देता है, इल्म अगर हासिल करोगे तो दुनिया तुम्हारे कदमों में झुक जाएगी। वअल्लम आदम अल अस्मा कुल्लहा सुम्मा अरदहुम, और आप करीब से देखें हुजूर का वजूद दुनिया में आया,
जंग बदर सबसे पहली हुई। जंग बदर में 70 काफिरों को मुसलमानों ने कैद कर लिया और 70 को नारे जहन्नम रसीद कर दिया। ऐलान मशवरा यह हुआ कि इन 70 कैदियों का क्या किया जाए। तो मशवरा यह हुआ कि जो फिदिया दे सकते हैं वो फिदिया देकर अपनी जान छोड़ाकर मक्का चले जाएं। तो जिनके पास रकम थी देने की, पैसे थे देने के लिए, वो अपनी जान का फिदिया दिया, उन्होंने चले गए वापस। लेकिन कुछ ऐसे भी मक्के के लोग गरीब गिरफ्तार हुए थे काफिर के जिनके पास देने के लिए कुछ नहीं था फिदिया। उनके बारे में मशवरा क्या हुआ, हुजूर फरमाते उनसे कि तुम्हारा फिदिया यह है कि तुम हमारे अंसारे मदीना, तुम हमारे मुसलमान बच्चों को इल्म सिखा दो, हम तुम्हें छोड़ देंगे। ये पहली दुनिया के अंदर ऐसी जंग का नतीजा सामना है। दुनिया ने पहली बार ऐसा देखा कि इल्म के बदले भी क्या है, लोगों को आजाद किया जा रहा है। आप यहां पर यह समझेंगे कि इल्म दीन सिखाने के लिए फिदिया उनका कबूला गया। हालांकि इल्म दीन तो रसूलुल्लाह सबसे अच्छा सिखा रहे थे, सहाबा सबसे अच्छा इल्म दीन सिखाते थे। इल्म दीन सिखाने के लिए उनको नहीं रोका गया कि तुम्हारा फिदिया यह है कि तुम इल्म सिखाओ, इल्म दीन सिखाओ, बल्कि कौन सा इल्म जो काफिरों के पास इल्म था, इल्म दीन के अलावा दुनिया की जो जबानों का, लैंग्वेजेस का इल्म था उनके पास, कोई तौरात का इल्म सिखा दे। जो भी लैंग्वेजेस का इल्म था वो अपना इल्म हमारे बच्चों को मुंतकिल कर दे, हम उसको आजाद कर देंगे। तो ये दुनिया ने देखा कि इल्म सिखाने के बदले में भी रसूलुल्लाह ने आजाद किया। और करीब से देखें आप इल्म की अहमियत क्या है। हजरत उमर फारूक आजम का दौरे हुकूमत है, आप खलीफा बने और 36 लाख से जायद मुरब्बा मील पर आपकी हुक्मरानी। 4000 मसाजिद आपने ऐसी ऐसी डिजाइनिंग वाली तैयार की, दुनिया हैरान। और आज भी क्या है, फौज वगैरह में जो हजरत उमर फारूक आजम के जो उसूल हैं, जो कवानीन हैं, वो आज भी फॉलो किए जाते हैं। किस तरह से क्या है कमांड किया जाता है फौज को। तो हजरत उमर फारूक आजम जब खलीफा बने आपके दौरे खिलाफत में, जब आप मक्का जा रहे थे हज करने के लिए, तो मक्के से पहले आप रुके अपने तमाम लोगों के साथ, मुसलमानों के साथ। तो सारे लोग तो एक तरफ जमा थे, हजरत उमर फारूक आजम उन तमाम लोगों से उठकर जुदा होकर दूसरी जगह जाकर बैठ गए और वहां आपने एक लकड़ी ली और जमीन को कुरेद रहे थे। मुसलमानों ने देखा, सहाबा भी साथ में, कि हजरत उमर फारूक आजम अलग उठकर गए, बैठ गए और वहां लकड़ी से जमीन को कुरेद रहे हैं। हंस भी रहे, मुस्कुरा भी रहे, रो भी रहे हैं, कभी रोते हैं, कभी मुस्कुराते हैं, कभी हंसते हैं। सहाबा ये मंजर देख रहे हैं और करीब गए तो जाकर पूछा, अमीरुल मोमिनीन क्या माजरा है, क्या आप सबसे अलग उठकर आकर यहां बैठे हैं और लकड़ी से जमीन कुरेद रहे हैं, कभी मुस्कुरा रहे हैं, कभी हंस रहे हैं, कभी रो रहे हैं, माजरा क्या है। तो हजरत उमर फारूक आजम के जुमले सुनो। आप फरमाते हैं, जहां मैं बैठा हूं ये वो जमीन है कि जहां जब मैं मुसलमान नहीं हुआ था, इस्लाम मैंने कबूल नहीं किया था, हुजूर के कदमों में नहीं आया था, तो मैं यहां पर ऊंट चराने आया करता था। ये हजरत उमर फारूक आजम के जुमले कि मैं इस जमीन में ऊंट चराया करता था, मैं अपने बाप खत्ताब के साथ आया करता था। और मुझे याद है कि एक दिन मेरे वालिद खत्ताब ने मुझे मारा भी चाटा और कहा कि है खत्ताब, तुझसे 5 ऊंट एक लाइन में नहीं खड़े किए जा रहे तो तू दुनिया में क्या करेगा। ये उस जमाने की बात कि वो दौर था मेरा कि जब मैं ऊंट चराने आया करता था तो 5 ऊंट भी मुझसे एक लाइन में सीधे खड़े नहीं हुआ करते थे। लेकिन आज इस्लाम ने मुझे वो तालीम दी है और मजहब इस्लाम ने मेरी ऐसी तरबियत की है, हुजूर ने मुझे ऐसा इल्म अता फरमाया है कि उस जमाने में 5 ऊंट मुझसे लाइन में नहीं खड़े होते थे, आज 36 लाख मुरब्बा मील की हुक्मरानी मेरे कदमों में है। हाँ, वो इल्म मुझे दिया है रसूलुल्लाह ने, वो इस्लाम ने मेरी तरबियत की है कि पहले 5 ऊंट मुझसे खड़े नहीं होते थे, आज मेरे एक इशारे पर 36 लाख मुरब्बा मील की फौज मेरे एक इशारे पर सीधी खड़ी हो जाया करती है। कहां से? ये इस्लाम ही है जिसने क्या फर्श से अर्श पर उठा दिया। और आप कुरान पढ़ें, सारी चीजों का हल कुरान में है। आप कुरान पढ़ें, सूरे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जहां पर वाकया है, वलक़द आतैना दाऊद सुलेमाना, तो वहां पर यह है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की, अल्लाह मुझे बादशाह बना दे, अल्लाह मुझे बादशाह बना दे। तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया कि 3 चीजें सुलेमान के पास लेकर जाओ। क्या? इल्म लेकर जाओ, दौलत लेकर जाओ, शोहरत लेकर जाओ। और कहना कि 3 चीजों में से एक ही चीज तुमको चुननी है, दौलत चुन लो, शोहरत चुन लो या इल्म को चुन लो।
हजरत जिब्रील आए हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में और आकर अर्ज किया, अल्लाह ने 3 ऑप्शन दिए आपको, या तो इल्म चुन ले, या दौलत चुन ले, या शोहरत चुन ले। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इल्म को चुन लिया, अल्लाह मुझे इल्म अता फरमा दे। अब कुरान की तफसीर आप उठाकर देखो कि हजरत सुलेमान ने जब इल्म को चुना कि अल्लाह मुझे इल्म अता फरमा दे, तो मुफस्सिरीन कहते हैं कि अल्लाह ने इल्म की बरकत से उन्हें बादशाह भी बना दिया। इल्म की बरकत से अल्लाह ने उनको शोहरत भी दे दी। आज हम जानते नहीं जानते, हजारों साल सुलेमान अलैहिस्सलाम को गुजर गए, आज भी इनकी शोहरत का चर्चा है कि नहीं है। इल्म चुना तो अल्लाह ने दौलत भी दे दी, शोहरत भी दे दी। ये इल्म का मामला है। आप अपने बच्चों को इल्म हासिल कराएं। एजुकेशन के तमाम स्कूल कॉलेजेस खुल गए हैं, तो अपने बच्चों को जरूर बड़ी अच्छी से अच्छी एजुकेशन दिलाएं। खानकाहे मारहरा मुताहरा का एक नारा है, क्या नारा? आधी रोटी खाइए, बच्चों को पढ़ाइए। क्या मतलब है? आधी रोटी खाइए, बच्चों को जरूर पढ़ाइए। और एक नारा यह भी ऐड हुआ कि फर्ज उलूम भी सिखाइए। क्या मतलब है इसका? बुनियादी दीन की तालीम भी अपने बच्चों को दिलाइए। यही नहीं कि इल्म दीन से बिल्कुल दूर हों और आप क्या है उन्हें हायर एजुकेशन दिलाते रहें, बड़े बड़े कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में आपके बच्चे पढ़ते रहें, उन्हें नमाज का तरीका ही ना आता हो, उन्हें नमाज जनाजा का तरीका ना आता हो। तो फर्ज उलूम बुनियादी इल्म दीन जरूर हासिल कराएं, वरना ये इल्म जो है ये गुमराह कर देता अगर दीन से जुदा हो जाता। तो याद रखने ना, अल्लामा इकबाल ने अपने शेर में यही वजाहत की है कि अगर दीन का इल्म ना हो तो दुनिया का इल्म कहीं ना कहीं इंसान को गुमराह कर देता। हाँ, लादीनियत की तरफ इंसान चला जाता है। तो अपने बच्चों को इल्म दीन हासिल कराएं और खास तौर से ये मजदूरी वाला सिस्टम खत्म करें मुसलमान कौम। और ये जो जिसके 3 बच्चे हैं तो वो यही सोचता है कि 500 रुपये भी लाएगा तो 1500 रुपये रोज के लाएगा। तो ये थिंकिंग जो है खत्म होनी चाहिए। आप ऐसी तालीम अपने बच्चों को दिलाएं कि जो 1500 नहीं, रोजाना के 5000 लाए। हाँ, जब अच्छा पढ़ेगा, अच्छी एजुकेशन उसके पास होगी तो दुनिया उसके सामने झुक जाएगी। हाँ, अच्छा अगर डॉक्टर है, मुसलमान स्पेशलिस्ट है वो अपने मैदान का, तो जो लोग मुसलमानों को बुरा भला कहते हैं वो भी उन्हीं के पास जाकर नंबर लगाते हैं। आप अगर आपका बेटा किडनी स्पेशलिस्ट है तो जो कौम मुसलमानों को बुरा भला कहती है वो भी वहीं जाएगी, किडनी स्पेशलिस्ट है या दिमाग का है, हर मैदान का आपका अपना स्पेशलाइजेशन है। तो अपने बच्चों को अच्छी तालीम जरूर हासिल कराएं और ये जो लालच है 500-600 रुपये का, ये खत्म होना चाहिए। और ख़ास तौर से इल्म दीन ज़रूर हासिल कराएं। और इल्म दीन के लिए मैंने ऐलान भी किया था रमज़ान में कि जो हमारा हबीबा एकेडमी यहाँ पर चलता है वो इंशाअल्लाह उसका बाज़ाब्ता तौर से कल से उसका तालीमी आगाज़ हो रहा है। तो अपने बच्चों को कुरान ज़रूर सिखाएं और इंशाअल्लाह बहुत मजबूत तालीम है हमारी हबीबा एकेडमी की। तो 1 घंटा आप दें अपने बच्चों के लिए कि नहीं 1 घंटा तू दीन पढ़ कर आ, तो यहाँ वो नमाज रोज़ा भी सीखेगा और वालिदैन की कैसी कदर कीमत होती है वो भी सीखेगा। सबसे बड़ी बात ये कुरान सीख जाएगा। आप नहीं पढ़ सके कुरान तो आपका बच्चा अच्छे मखारिज से कुरान पढ़ेगा, तो दीन का सवाल ज़रूर अल्लाह करेगा। एक बार को दुनिया का अगर नहीं हुआ तो नहीं हुआ, लेकिन दीन के बारे में अल्लाह ज़रूर पूछेगा कि कितना दीन तूने सिखाया अपनी औलाद को। और आखिर में एक रिसर्चर है, उन्होंने बड़ी अच्छी बात लिखी है, मैं आपको बयान करूं कि ये चीन की कहावत है। ये चीनी लोग कहते हैं कि अगर तुम चाहते हो कि हम 1 साल खुशहाल रहें तो फसलें उगाओ, यानी खेती बाड़ी करो। 1 साल की अगर खुशहाली चाहते हो तो खेती बाड़ी करो। 100 साल की खुशहाली अगर चाहते हो कि 100 साल तक मैं खुशहाल रहूं, रोजगार मेरे पास रहे, तो वो कहते हैं कि फिर दरख्त लगाओ, वो फल देता रहेगा आपको सालों साल। और अगर आप चाहते हैं कि आप 1000 साल तक खुशहाल रहें, 1000 साल तक आपके पास रोजगार रहे, खुशहाल रहे, तो वो कहते हैं कि अपने बच्चों को इल्म सिखाओ, एजुकेशन दिलाओ, इन्वेस्टमेंट करो इल्म पर, एजुकेशन पर। तो बड़ी अच्छी प्यारी बात है। तो लालच में ना आए, अपने बच्चों को जरूर आला तालीम हासिल कराएं, डॉक्टर बनाएं, इंजीनियर बनाएं। कितने एजुकेशन के फील्ड हैं। अल्लाह तबारक व तआला मुसलमानों को उरूज अता फरमाए, मुसलमानों को तरक्की अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह।